अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको वो कहावत सुनाएंगे जो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी। कहते हैं कि घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। ये वाक़या कैसे होता है? वो इस तरह से होता है कि एक नौजवान अपनी वालदा पर तशद्दुद करता है, उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाता है और अपने लिए दोज़ख खरीदता है, और वही शख्स, वही नौजवान अपने भाई को भी कत्ल कर देता है। अब माँ जो एक मकतूल है वो भी उसका प्यारा बेटा है, और एक मुलजिम जो उसका बड़ा बेटा है। लेकिन माँ कहती है, माँ के जज्बात क्या है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। गाना के इलाके में एक ऐसा जालिम बेटा भी मुलजिम के तौर पे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो पहले अपनी माँ पर तशद्दुद करता था, फिर अपने भाइयों पे तशद्दुद करता था, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपने ही छोटे भाई को कत्ल कर दिया। ये वाक़या है क्या? किस तरह से वो नाखलफ बेटा अपनी माँ पर तशद्दुद करता था, फिर उसके बाद वो अपने ही भाई का कातिल बन गया। ये सब कुछ आपको उस माँ की ज़ुबानी सुनाते हैं जो इस वक्त हमारे साथ है। माँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। 2-3 ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਫੜੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੀਖ ਸੁਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਾ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਨੰਨੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ, 1 ਬੇਟੀ। 3 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੈਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਲੈਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜ ਮਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਜਾਨ, ਉਹ ਆਸਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਾਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਘਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੌਣ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾ ਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਮਾਰੀ, ਬੜਾ ਖੂਨ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾ ਬਾਹਰ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? बड़े तो ही आ गया। हौसला करो माँ जी, हौसला करो। मेरे सब बारे कि मेरे दुश्मनों ने खोए, मेरा एक पुत्र रह गया दुनिया से।
ਮਾਜੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ? ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਕਾਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੜਕ ਤੜਕ ਕੇ ਨਾਤਾ 'ਚ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਬੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਸ ਉਹਦੀ? ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 12 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ? ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਨ ਤੇ ਸੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੈਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੁੱਤਰ ਓਡਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮਿਲਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਗਈ, ਛੱਡ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੰਨੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਰਸ਼ਵਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ? 18 ਸਾਲ ਦਾ। 18 ਸਾਲ ਦਾ? 18 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਹਲੇ 2 ਸਾਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਐਡੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੰਨੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ, ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 2-3 ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਦੇ ਲਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਫ करना ਉਹਨੂੰ नहीं करना। ये है जी वो वाली माँ जिसका एक बेटा कत्ल कर देता है और कत्ल करने वाला इसका बड़ा बेटा है। दोनों तरफ ही बेटे हैं, मुलजिम भी बेटा और मकतूल भी बेटा। और ऐसा नाखलफ मुलजिम और
और बेटा है जो पहले अपनी माँ पर तशद्दुद करता है, अपनी माँ को बारहा तशद्दुद का निशाना बना चुका है, लेकिन फिर अपने भाई की छुरी के वार करके उससे भी कत्ल कर देता है। तो उसकी शादी हुई थी, शहजाद की हाँ शादी जी, हुई? उसकी शादी हुई थी। उसने बेगम का भी कोई सामान समून दहेज वगैरह मिला था, सोना वगैरह, वो बेच के उसने नशे वगैरह में डाल अच्छा, नशा करता है? हाँ जी, कौन सा नशा करता है? शराब पीता था पहले से। शराब पीता था जी। तो शराब पीने वाला जो है वो भी घर का सामान बेच देता है या कोई और मंशियात का इस्तेमाल करता जी, है? वो होड़ का तो अम्मी को ही पता था कि क्या करता था। मैं क्योंकि लहदा रहता हूँ। तुम क्यों लहदा रहते हो? लहदा इसीलिए रहता हूँ कि लड़ाई झगड़े की वजह से ना मेरी बेगम कहती है कि मैंने अपने घर चले जाना। मैं उसको बोलता हूँ कि चलो यार, मैं काम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, हाँ। हम लहदा मकान ले लेते हैं, लहदा रहते हैं। अच्छा, ठीक है, अब बड़े की वजह से हम लहदा हुए थे। अच्छा, जो कातिल है हाँ जी, भाई उसकी वजह से अलग से ही हुए। हम अलग हुए थे। ठीक तुमने है, लहदा घर ले लिया, हाँ फिर जी। माँ तुम्हारी और छोटा भाई, छोटा तो बड़ा और उस ये अम्मी के साथ थे। अम्मी के साथ रहते ठीक थे है। और औरत घर में सिर्फ माँ ही थी। माँ ही थी। ठीक है। वो- जो छोटा भाई था वो क्या करता था? वो हौजरी लैंड पे काम करता था। होजरी लाइन में? हाँ जी, ये फैक्ट्री नकट्टू था, नलायक हाँ था, जी, कोई कुछ काम भी नहीं करता था ये। कुछ नहीं करता वही था। मकान का किराया देता था, बिल छोटा वगैरह, भाई। हाँ जी, राशन वगैरह सब कुछ वही डालता माँ था। के साथ भी, माँ अम्मी का भी ख्याल काम पे करना। जाती थी। अम्मी जो लेके आती थी वही इनको देती थी सब कुछ, अच्छा, कि मेरे बेटे खा लेंगे। अच्छा। शहजाद मुल्जिम जो अपनी ही माँ का नाखलफ था और अपनी माँ पर तशद्दुद करता था, फिर उसने अपने छोटे भाई को भी छुरियों के वार मार के कत्ल कर दिया। उसका एक और भाई वो भी हमारे साथ है जो इस मुकदमे में मुद्दई भी है। इससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई बेटा इतना सफाक, कोई भाई इतना जालिम हो सकता है कि अपनी माँ पर भी तशद्दुद करे और अपने भाई को भी कत्ल कर दे। आपका क्या नाम है? हमाद अली सर। ये जो शहजाद है जी ये तुम्हारा बड़ा भाई है? जी, बड़ा क्या मुझसे। करता है ये? ये कुछ भी नहीं करता, वेला रहता है, कोई काम वगैरह नहीं करता। अच्छा, ये सब भाइयों में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है। तो एक बहन इससे बड़ी है। बहन बड़ी है, हाँ जी, शादीशुदा वो है? शादीशुदा, वो भाइयों अपने में घर तुम है। में से और जो फोत हो गया हाँ उसमें जी। उससे ये बड़ा था? मुझसे ये बड़ा है, जो तुमसे फोत बड़ा। हुआ है ना वो मुझसे छोटा ये है। कितना पढ़ा लिखा है? ये तकरीबन 6 पढ़ा है, 5-6 पढ़ा। 5-6 पढ़ा हुआ हाँ है। जी। आप लोग भी पढ़े हो? नहीं जी, मैं नहीं पढ़ा। वालिद मेरे से आप- छोटा पढ़ा था बिलाल, जो अच्छा, फोत जो हो गया फोत ना, वो कितना पढ़ा वो था? 8 पढ़ा था। 8 पढ़ा हुआ था। तो जी। आप के वालिद कहाँ होते हैं? वालिद कसूर होते हैं ये। वालिद कसूर होते हैं, आप उनके साथ नहीं रहते? नहीं, उन्होंने दूसरी शादी की है। अच्छा। उनके भी बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं उनकी, एक बेटा है अच्छा, उधर कसूर। कसूर में? जी। अच्छा, तो आपको किसने पाला फिर? वालिद ने? अम्मी ने ही दूसरे- पाला। अम्मी ने पाला? ने सब कुछ मेहनत किया। मजदूरी करके? सब कुछ अम्मी ने ही किया। घरों में काम करती हाँ थी जी, कि कुछ और करती थी? काम ही करते थे घरों में, काम करके कहीं किसी की तपड़ी मारी, कहीं किसी भांडे धोए, कपड़े धो के हमें आगे पाला है इसने। इस तरह से पाला? हाँ जी। तो उसकी शादी हुई थी, शहजाद की हाँ शादी जी, हुई? उसकी शादी हुई थी। उसने बेगम का भी कोई सामान समून दहेज वगैरह मिला था, सोना वगैरह, वो बेच के उसने नशे वगैरह में डाल अच्छा, दिया। नशा करता है? हाँ जी, कौन सा शराब नशा करता है? शराब पीता था पहले से। शराब पीता था? जी। तो शराब पीने वाला जो है वो भी घर का सामान बेच देता है या कोई और मंशियात का इस्तेमाल करता जी, है? वो होड़ का तो अम्मी को ही पता था कि क्या करता था। मैं क्योंकि लहदा रहता हूँ। तुम क्यों उनसे। लहदा रहते हो? लहदा इसीलिए रहता हूँ कि लड़ाई झगड़े की वजह से ना मेरी बेगम कहती है कि मैंने अपने घर चले जाना। मैं उसको बोलता हूँ कि चलो यार, मैं काम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, हाँ। हम लहदा मकान ले लेते हैं, लहदा रहते हैं। अच्छा, ठीक है, अब बड़े की वजह से हम लहदा हुए थे। अच्छा, जो कातिल है हाँ जी, भाई उसकी वजह से अलग ही हुए। हम अलग हुए थे। ठीक तुमने है, लहदा घर ले लिया, हाँ फिर जी। माँ तुम्हारी और छोटा भाई, छोटा तो बड़ा और उस ये अम्मी के साथ थे। अम्मी के साथ रहते ठीक थे है। और औरत घर में सिर्फ माँ ही थी? माँ ही थी। ठीक है। वो- जो छोटा भाई था वो क्या करता था? वो हौजरी लैंड पे काम करता था। होजरी लाइन में? हाँ जी, ये फैक्ट्री नकट्टू था, नलायक था, हाँ जी, कोई कुछ काम भी नहीं करता था ये। कुछ नहीं करता वही था। मकान का किराया देता था, बिल छोटा वगैरह, भाई। हाँ जी, राशन वगैरह सब कुछ वही डालता माँ था। के साथ भी, माँ अम्मी का भी ख्याल काम पे करना। जाती थी। अम्मी जो लेके आती थी वही इनको देती थी सब कुछ, अच्छा, कि मेरे बेटे खा लेंगे। अच्छा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वाकया क्या हुआ? वाकया सर ऐसे हुआ है कि मैं सुबह काम पे जाने लगा था, तकरीबन 7:30 का टाइम था। जिधर अम्मी होनी रहते हैं ना मेरे, हाँ। वो मालूम का नहीं आई थी। उसने दरवाज़ा लॉक किया, मैं काम पे जाने लगा हूँ। उसने बोला कि तेरे छोटे भाई को ना बड़े ने छुरी मार दी है। अच्छा, तो मैं सर भागा हूँ। मैंने भाग के देखा, जब गया हूँ, वो छोटे को ना हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा। उसके बाद मैं अपने घर आया हूँ वापस। अम्मी तो बेहोश पड़ी थी।
उसके बाद घर आया हूँ अपने, वो मेरे घर के पास था बड़ा, अच्छा जिसने छोटे को मारा था वो मेरे घर के पास आ गया था, ठीक है वो मुझे मारने आया था। ठीक है। उसको मैंने पकड़ा, मैंने 15 पे कॉल कर दी थी। जब उधर से आया हूँ ना, मुझे रास्ते में पता लग गया कि छोटा भाई फोत हो गया, ओहो तो मैंने ना 15 पे कॉल कर दी थी। ठीक है मैं सर उसको लेके ना आ रहा हूँ, तो वो ना पैराडाइज स्कीम है, उस स्कीम में आ रहा था, आगे कहीं पड़ी थी, मिस्त्री काम कर रहे थे। हाँ उसने मेरा हाथ छड़ाया, मुझसे भागा, कहीं पकड़ के ला के उसने मेरे सिर के बीच मारी है यहाँ, अच्छा दूसरी इधर होठ पे मारी है, ये दांत भी दोनों टूटे हैं। अच्छा। पहले ठीक तुम है। पे भी तशद्दुद हाँ जी, हुआ है? मेरे पे भी उसने फुल कोशिश की है मुझे भी मारने की। ये तो मालिक का करम हुआ है, मेरी माँ की दुआओं के साथ मैं बच गया हूँ। सर जी देखे ना कि गलती उसने की है, गलती की सज़ा तो मिलनी चाहिए उसको। हाँ। ठीक है, इधर भी मिलेगी, अगले जान जाके भी मिलेगी। ठीक क्या है। वजह है, तुम्हें क्या लगता है कि क्यों भाई तुम्हारा अपनी माँ पे भी तशद्दुद करता था? चलो भाइयों का तो इख्तलाफ हो जाता है किसी बात वो पे, लेकिन अम्मी काम का कहती हैं, वो काम नहीं करता था, उसका यही शिद्दत था कि काम का ना मुझे कोई कहे, किसी बात का ना मुझे कहे, बस मुझे खाना मिलता रहे, मैं चोरियाँ करता रहूँ। ठीक है, मैं लोगों के साथ जाके नशा वगैरह भी लोगों के साथ करता था। ठीक है, हाँ अल्लाह जाने वो आइस पीता था, क्या पीता था, आइस वाले नशे ऐसे करते हैं ज़्यादा लोग। हाँ। ठीक है, तो शुरू से इसने कोई काम नहीं किया? शुरू से जब शादी की है ना इसकी, इसने तकरीबन 6 माह काम किया है। बच्चे थे इसके? बच्चे नहीं थे जी। अच्छा 3 साल बीवी रही है। ठीक है, और उसके बाद ये इसकी बेगम ने भी बोला है कि तुम काम पे नहीं जाते हो, ऐसे है। ये बेगम इसकी फैक्ट्री काम करती थी, खुद काम करते खुद काम करती थी, ये वेला रहता था। अच्छा ठीक है, उसकी वजह से वो सक्की फूफो की बेटी थी, अच्छा उसको हम खुद ही वापस छोड़ आए। ना उसकी अम्मी थी ना उसका अब्बू था। अच्छा ठीक है, 3 बहनें हैं, वो एक भाई है। उनके चाचू ने फिर बोला कि हमें आप वापस कर जाएं इधर। ठीक है, अच्छा उन्होंने अदालत में से तलाक ले ली जी। अच्छा। जी। मतलब उसकी बीवी जो है वो भी अच्छी थी? हाँ जी, वो भी अच्छी थी, कुरान पाक की हिफज थी, मैट्रिक किया था उसने, बहुत अच्छी थी वो। हाँ, मेरी और सक्की फूफो की बेटी थी वो। और खुद भी मेहनत मजदूरी हाँ करती। जी, खुद ही इसके साथ हाथ बनाती अच्छा, थी ये अपना। किस तरह के लोगों से मिलता है? तुम्हारी अम्मी कहती हैं कि इसको घर में बड़े बड़े लोग मिलने आते थे। सर इस बात का तो मुझे इल्म नहीं आया, क्योंकि मैं अलहदा रहता था। मैं भी खुद मेहनत मजदूरी करता हूँ, मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी करने जाता हूँ। ठीक है, हाँ मैंने जो लेके आना वही अपने बच्चों को दे के खा पी के शाम को वेले, फिर सुबह जाएंगे फिर खा लेंगे, नहीं गए तो फिर भूखे ही सोएंगे। ठीक है। तो अब माँ को तुम अपने साथ रखो? मैंने अपनी माँ को अपने साथ ही रखा है, अब तो साथ सारी में- ज़िंदगी अपने साथ ही रखूँगा। तुम्हारी बीवी अच्छी हाँ है? जी, माँ की अच्छी खिदमत है, करेगी? बीवी है मेरी अच्छी है, माँ को सब कुछ पूछती है, पहले माँ को देती है, बाद में हमें देती है। अच्छा। ठीक है तो ये जो तुम्हारे साथ हुआ है वाकया, जी। इसमें अब जो पकड़ा गया भाई शहजाद, जो मुलजिम भी है, हाँ जिसने जी। भाई का कत्ल भी किया, हाँ जी अब क्या कहता है? कुछ पशेमान है, शर्मिंदा है? सर, अब उसको पता नहीं, वो तो उस टाइम ही नहीं शर्मिंदा था जब उसने मारा था। वो आगे मुझे कह रहा था कि मैंने एक को मार दिया, अब तुझे मारना है। ठीक अच्छा। है, उसके बाद अम्मी की बारी है, सबको मैंने मार देना, वो अच्छा, ऐसे ये कहता कहता था। था? हाँ जी, कोई आदमी गुजर रहा है ना उसके करीब से, 100-150 आदमी था, किसी ने आगे होके उसको पकड़ा नहीं है, मैंने ही उसको पकड़ा। इसी वजह से मुझे भी उसने तशद्दुद किया, कई मारी है सिर के बीच, दूसरी भी मारने लगा था, मैंने पकड़ ली। हाँ। ठीक और है, माँ को भी मारा उसने? माँ तुम्हें को भी मारा है, मुझे भी मारा है, बाजी के घर के भी जाके ईंटें गारी मारी हैं इसने कि बाहर निकलो आप। उन्होंने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला, डर के मारे। अच्छा। हाँ जी, इतना इसने जो इतना है क्या कर रहा है। वजह क्या है? कोई सिर्फ नशा ही है या हाँ जी, नशा ही है सर, नशा इसका है। कभी इलाज नहीं करवाया? किसका? इसका इलाज नहीं करवाया कभी? सर जी, इलाज इसका करवाया, स्टील बा मोड़ पे अब्बू लेके गए थे इसको। ठीक है, उन्होंने बोला था तुझे दाखिल कराते हैं बेटा, तू अपना ना अपना ये सब कुछ जो नशा करता ना ये छोड़ दे, काम कर तेरी शादी और कर देंगे। ठीक है। ठीक है, उसके बावजूद इसने मेरे घर भी आता था, मैं जब घर नहीं था होता, उसकी भाभी जो मर्ज़ी करती होती घर से, मेरे घर से भी चीज़ें उठा के भेज देता था जाके। हाँ। फिर मैं अपनी बेगम से पूछता था इधर मैंने ये चीज़ रखी थी, वो किधर गई है? हाँ। वो कहती थी मुझे नहीं पता। इसने मेरे घर से भी चीज़ें उठा के बेची हैं, छोटे भाई का मोबाइल भी बेचे हैं, 2 मोबाइल इसने उठा के बेचे हैं। अच्छा। ठीक है, 1.5 लाख के पौने 2 लाख का मोबाइल लिया था छोटे ने किस्तों पे, 1.5 लाख का लिया था, अच्छा। जो इसने दोनों बेचे हैं मोबाइल उसके। अच्छा।
मतलब चोरी भी करता चोरी था, भी करता सारा- था, हाँ जी, सब माँ कुछ पे भी करता है। तशद्दुद करता हाँ जी। था, भाई को भी कत्ल कर दिया, जी। तुम्हें भी कत्ल करने की मुझे भी, कोशिश की। मुझे धमकी दी बहन है के घर उसने। भी चला गया। हाँ जी, तो पुलिस ने कितनी मदद की है? पुलिस जितने जोगी है सर कर रही है। पुलिस नहीं, हमने- जब अब थाने में जी उसको गिरफ्तार करके ले आए, अब जेल भिजवा दिया है, जी, तो अब लगता है कि पुलिस इंसाफ दिलाएगी? इंशाल्लाह लगता तो है वो सर। पैसे वैसे तो नहीं पुलिस ने सर मांगे? पैसे वगैरह तो हम दे नहीं सकते, अकेला बंदा हूँ, मैं कैसे पैसे दूंगा? अच्छा, मैं घर अपना पालूंगा कि मैं उसके पीछे पैसे लगाऊंगा? ठीक है, तो मैं भी किराए पे रहता हूँ, मेरा कौन सा अपना घर है? बिल्कुल ठीक है। ये वो बदकिस्मत भाई है जी, जिसके छोटे भाई को बड़ा भाई कत्ल कर देता है और फिर इस पर भी कातलाना हमला करता है और इसको और इसकी माँ को, यानी कि अपनी माँ को भी बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाता है। दूसरी जानिब ये भी पता चलता है कि ये भाई इनका शहजाद जो है ये मंशियात का आदी है। मंशियात वो लानत है जो ना सिर्फ माली तौर पे लोगों को जो है वो कमज़ोर कर देती है, बल्कि रिश्तों की और रिश्तों के उस तकद्दुस को भी पामाल करने पे मजबूर कर देती है। ऐसा नौजवान जो पहले शादी करता है, फिर अपनी बीवी को काम काज करवाता है, ख़ुद काम नहीं करता, सिर्फ नशा करता है, फिर उसको तलाक देता है, फिर वो माँ जिसने उसको पैदा किया, पाला पोसा और घरों में, लोगों के घरों में काम करके उसकी परवरिश की, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाता है। फिर छोटा भाई जो घर का वाहिद कफ़ील होता है उसको भी तशद्दुद करता है, उसको भी अक्सर औकात मारता है कि वो अपनी माँ के साथ जब वो बदतमीज़ी करता था तो छोटा भाई उसको रोकता था, फिर भी वो उसको तशद्दुद करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसको भाई बड़ा उसकी जान ही ले लेता है। अब माँ भी और भाई भी ये चाहते हैं कि इनको, जो इनके भाई को कत्ल करने वाला है और जुल्म करने वाला भाई है, इसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। माँ भी यही कहती है कि वो कभी भी अपने बेटे को माफ़ नहीं करेगी, जिस तरह से उसने अपने छोटे भाई को कत्ल किया और उस छोटे भाई ने, छोटे बेटे ने माँ के हाथों में दम तोड़ा, कहती है कि वो उसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। असल इसमें क्या है कि इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में जो मंशियात का इस्तेमाल और मंशियात की खुलेआम फ़रोख्त शहर लाहौर में हो रही है, उसका आदी होने वाले लोग, उसका शिकार होने वाले लोग अब इस तरह की भी अफसोसनाक वारदातों में मुलविस होने लग गए। पहले मां नूं मारिया, फिर भरा नूं मारिया, बहुत अफसोस होया। बाकी इस गल का बहुत सदमा ज़्यादा है। भरा नूं मारना बहुत दुख है। बाकी वाक़या सुनिया तो नहीं है, बाकी यह वाक़या पहली दफ़ा ही देखा है। हाँ, अगे तो कई नहीं सुनिया है। ये बस पुलिस ने करना, जो करना पुलिस ने करना, असीं हुण क्या करना है। सानूं तकरीबन हफ्ते बाद या महीने बाद कई मत्थे लग गया है। असीं कम्मां कार वाले बंदे, वो भी कम्मां कार वाला बंदा है। हाँ, तो इन्ना टाइम नहीं होंदा भी जो बंदा 10 मिनट घंटा उत्ते बह के बातचीत कर लेंदा या गलबात कर लेंदा है। नहीं, ये कदी महसूस नहीं सी होया है भी ये वाक़या होना है। अगर सानूं इस गल का पता होंदा, असीं या बच्चा पासे कर देंदे गे तो या असीं इहनूं पासे कर देंदे गे। ये भी हो सकता है। बाकी सानूं इस गल का कोई इल्म नहीं सी है। पहले ये किसी फैक्ट्री में काम करता था, उधर से इसको लत पड़ गई, ठीक है। उन्होंने फैक्ट्री वालों ने काम से भी निकाल दिया, लेकिन ये उसी तरह लगा रहा। चूँकि इसके पास पैसे वैसे नहीं होते थे तो घर की चीज़ें बेच के कहीं ना कहीं से अपना नशा पूरा कर, जब नशा नहीं मिलता था तो ये तशद्दुद पे उतराता था। ठीक है। असगर साहब, जो माँ है मकतूल की भी और मुलजिम की भी, बदकिस्मती से बेचारी को मुद्दईयत जो है दूसरे बेटे की है उसमें मुकदमे में, वो कहती है कि इसके बड़े लोगों से ताल्लुकात थे, जो गाड़ियों में इसको लोग मिलने भी आते थे, घर में भी आते थे, कुछ इस तरह का। तो क्या कोई ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ मंशियात इस्तेमाल करने के साथ साथ ये फ़रोख्त भी करता था? नहीं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसी कोई बात नहीं निकली। अब मुझे नहीं पता कि वो माँ जी ने ऐसी बात क्यों की है। ठीक है। इसके पीछे कोई बंदा भी नहीं आया जब हमने पकड़ा ना इसको। ये देखे ना, इसका अगर कोई सोर्स होता तो ये भी ऐसी जगह पे पनाह ले लेता। ये तो भटकता फिरता था, दाता दरबार वहाँ रहता था, वहाँ खाता था। इसका अगर खाने पीने का कोई सिलसिला होता तो ये वहाँ दाता दरबार में जाके क्यों पनाह लेता? इसका कोई ना कोई रहने का कोई ऐसा अच्छा ठिकाना था, ना कि उसको खाने पीने का। तो हमने इसको मैनुअल सर्च किया ना जब इसकी हिस्ट्री मालूम की तो हमने मुख्तलिफ ये इसी तरह के मज़ार वगैरह देखे, फिर ये वहाँ से पकड़ा गया।
इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना हैं जी, इंस्पेक्टर हैं असगर अली भट्टी साहब, जिन्होंने इस मुलजिम को भी गिरफ़्तार किया जो माँ का नाखलफ बेटा था और भाई का कातिल भी था। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। भट्टी साहब, ये अपनी नौयत का बड़ा अनोखा सा केस है कि अपनी माँ पर भी तशद्दुद करता है मुलजिम और फिर अपने भाई को भी कत्ल कर देता है। ये है क्या इन्वेस्टिगेशन कहती है, किस तरह से कत्ल हुआ और किस तरह आपने मुलजिम पकड़ा? जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब एक्चुअली ये आई थिंक ये 7 मार्च का इंसिडेंट है। अर्ली मॉर्निंग ये हमें 115 की कॉल मसूल हुई थी। ठीक है। तो हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया तो पता चला कि एक भाई ने एक भाई का मर्डर कर दिया है, इसने उसके पेट में छुरी मारी थी। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये वो जो बंदा जिसने कत्ल किया, सज्जाद नाम के आदमी ने, जो कातिल था, वो ऑलरेडी शादीशुदा भी है और वो नशे वगैरह का आदी हो गया था। ठीक है। तो उसकी वालदा कहती थी कि काम पे जाओ, वो काम भी कुछ नहीं करता था, घर से चीज़ें उठाता था, घर की चीज़ें उठा के बेचता था, ये मना करते थे। इस हद तक ये लोग बर्दाश्त करते रहे। फिर इसने माँ को के साथ बदतमीज़ी, गाली गलोच और उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये इसका छोटा भाई था, इसने उसको मना किया। उस दिन भी ये अपनी वालदा पे तशद्दुद कर रहा था, उसको गाली गलोच कर रहा था, इसने मना किया तो उसने इसको छुरी मार दी। ठीक है। अच्छा, छुरी मारी और उसका मौके पे ही दम तोड़ गया। और नशा किस तरह का करता था वो? क्या कोई आइस का इस्तेमाल करता था? आई थिंक आइस का इस्तेमाल करता था। अच्छा। तो पहले ये किसी फैक्ट्री में काम करता था, उधर से इसको लत पड़ गई। ठीक है। फिर उन्होंने फैक्ट्री वालों ने काम से भी निकाल दिया, लेकिन ये उसी तरह लगा रहा। चूँकि इसके पास पैसे वैसे नहीं होते थे तो घर की चीज़ें बेच के कहीं ना कहीं से अपना नशा पूरा कर। जब नशा नहीं मिलता था तो ये तशद्दुद पे उतर आता था। ठीक है। असगर साहब, जो माँ है मकतूल की भी और मुलजिम की भी, बदकिस्मती से बेचारी को मुद्दईयत जो है दूसरे बेटे की है उसमें मुकदमे में, वो कहती है कि इसके बड़े लोगों से ताल्लुकात थे, जो गाड़ियों में इसको लोग मिलने भी आते थे, घर में भी आते थे, कुछ इस तरह का। तो क्या कोई ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ मंशियात इस्तेमाल करने के साथ साथ ये फ़रोख्त भी करता था? नहीं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसी कोई बात नहीं निकली। अब मुझे नहीं पता कि वो माँ जी ने ऐसी बात क्यों की है। ठीक है। इसके पीछे कोई बंदा भी नहीं आया जब हमने पकड़ा ना इसको। ये देखे ना, इसका अगर कोई सोर्स होता तो ये भी ऐसी जगह पे पनाह ले लेता। ये तो भटकता फिरता था, दाता दरबार वहाँ रहता था, वहाँ खाता था। इसका अगर खाने पीने का कोई सिलसिला होता तो ये वहाँ दाता दरबार में जाके क्यों पनाह देता? इसका कोई ना कोई रहने का कोई ऐसा अच्छा ठिकाना था, ना कि उसको खाने पीने का। तो हमने इसको मैनुअल सर्च किया ना जब इसकी हिस्ट्री मालूम की तो हमने मुख्तलिफ ये इसी तरह के मज़ार वगैरह देखे, फिर ये वहाँ से पकड़ा गया। ठीक है। अच्छा असगर साहब, जो मुलजिम जब आप गिरफ़्तार करते हैं तो यकीनन उसका एक एतराफ़ी बयान तो पुलिस कस्टडी में होता ही है। तो उसमें इसने कुछ बताया कि भाई के साथ क्या इसका ऐसा झगड़ा किस बात पे हुआ और माँ को भी नशे का ही मानता है? असल में ये ना मतलब मेंटली अब इल आदमी था। अच्छा। ये अजीबोगरीब बातें करता था कि जी बस मैंने मार दिया, मुझे हुक्म आया था कि मैं भाई को मार दूँ। ऐसी बात तो कोई भी नहीं थी। ये सारा कुछ नशे का किया कराया था। अच्छा। ये नशे का इतना एडिक्ट हो गया था कि ये हवालात में भी ना 1-2 हवालातियों के गले पड़ा। अच्छा। फिर हमने इसको निकाल के ना इसको अच्छी तरह समझाया। ठीक है। जब इसको अच्छी तरह समझाया उसके बाद इसने फिर हैंकी बहकी नहीं की। असगर साहब, ये बताइएगा कि कितना मजबूत केस है, आला कत्ल बरामद हो गया, सज़ा कितनी मिल जाएगी? माँ तो कहती है कि अपने सबसे अच्छे और सबसे छोटे बेटे के कत्ल को वो माफ़ नहीं करेगी, चाहे उसका कातिल उसका बड़ा बेटा ही है। देखिए, वालदा जो है ना वो बेचारी तो दोनों तरफ से पिस गई है। एक बेटा उसको डेथ हो गया और एक हवालात जुडिशल चला गया। ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद वो माँ का वाकई प्यारा बेटा था, उसका आखिरी बेटा था। बड़ा खूबसूरत बच्चा था। आप उसकी तस्वीर शायद आपको मिले कहीं से, तो बहुत खूबसूरत था। वो माँ का ओबीडियंट बहुत था, माँ की बड़ी ताबेदारी करता था। इसकी वालदा बताती कि जितनी वो पैसे लाता था ना, उसको जो भी मिलता था तनख्वाह के सिलसिले में, जो भी काम करता था, वो सारे के सारे पैसे मुझे देता था। शाम को उसकी टांगे वगैरह दबाता था। तो माँ उसको कैसे भूल सकती है? ये इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो बात होती ना, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, ये वो वाली मिसाल है। लेकिन इसकी सज़ा की वाली बात है, ये इंशाल्लाह ताला पूरी इसको होगा, कन्विक्ट होगा। हमने इसकी फोरेंसिक की एविडेंस कलेक्ट किया। हमने वो असल वाला अल्लाह कत्ल छुरी ली, उस पर ब्लड लगा था, उसको डीएनए के लिए भिजवाया। वो डीएनए की एक ऐसी एविडेंस है कि उसको रिवर्ट नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, अगर ये लोग उसकी पैरवी मुकम्मल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मैक्सिमम पनिशमेंट इसको होगी।
बिल्कुल ठीक है। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना, जिनका ये कहना था कि इंतहाई इंसानियत सोज एक वाक़या है। एक छोटा भाई बड़े भाई के हाथों कत्ल हो जाता है और माँ का भी वो जो है वो फर्मा बरदार नहीं था, नाखलफ था। और जो बच्चा, जो भाई कत्ल हुआ, वो इंतहाई माँ का फर्मा बरदार और माँ के दुख सुख का साथी भी था। और पुलिस इसके लिए पुरअज़म है कि मुलजिम को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी, सिवाय इसके कि अगर मुकदमे का मुद्दई इसमें मुलजिम को माफ़ ना कर दे। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की और जिसमें ये भी साबित होता है कि माँ के लिए औलाद एक जैसी होती है, लेकिन मुलजिम अपनी माँ को ऐसे कड़े इम्तिहान में डालता है कि वो मकतूल बेटे का साथ दे या मुलजिम बेटे को छुड़ाने के लिए उसे माफ़ कर दे। ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि माँ किस तरफ जाती है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।